हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है दिस इज़ हाउ दे ब्रेड क्रम्ब यू। सो कैसे आपके एक्सेस आपको ब्रेड क्रम्ब करते हैं या कैसे लोग रिलेशनशिप्स में दूसरे लोगों को ब्रेड क्रम्ब करते हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर मेरी पहले भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखी। बट आज के वीडियो में मैंने एक कॉमेंट ऐड किया है और इसी कमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है कि ऐसी किसी सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हों या अगर आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे डील करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Hi Rabia, I have been watching your videos since quite a long time. Currently, I'm going through a very tough time. Your motivational videos are too good. Thank you. You are so welcome. I am with a person whom I connected on matrimonial site since 1.5 year. Initially, he showed interest, love, care, and when I became serious for him, he ghosted me. I came to know that he was looking for other options जबकि मुझे बार बार शादी की बात करते थे. It hurt me a lot as I stayed true to him. When I asked him, he behaved very immature and suddenly all his care went away. He just said it's nothing like that and he stopped talking to me. I came to know later that he left me for another option who was rich and more pretty. He blocked me and there was no contact for 2 months. I tried to move on but couldn't. Then he unblocked me. After that, very slowly we started communication. I stayed polite to him, but yes, I confronted him about his sudden blocking behavior and other options वो जो देख रहे थे. I just told him if आप interested नहीं हो तो बोल दो, but why do you have to lie? But he said ऐसा कुछ नहीं था. And one thing I realized is that he's never ready to discuss any mature talks. Neither he accepted his mistake nor apologized. But this time he was putting efforts from his end and he made me feel that I meant something to him. I was skeptical at first, but as I really felt for him before, I thought of giving him a second chance, but maybe that was my mistake. He knows very well that I am very loyal and loving towards him, an overgiver. We spoke on video call after a long time, but after that, he started avoiding me. I could sense his vibes. 4 to 5 days, there was no proper talk, and his behavior changed. On 24th Jan, I called him, but he didn't pick. On my second call, he blocked my calls. Then I texted him what has happened. I asked him if it was video call which he didn't like. He said he's busy. But I know him, he never behaved like this. Even if he is busy, he'll message. But his energy and vibes was different. I got very panicked. As first, uska wahi behavior. I messaged him in WhatsApp at night. He blocked me. There has been no communication since. I really couldn't understand his behavior. Each time, just on off. No matter how much a person is busy, he would call or ping if he really cares and loves. अगर वो एंग्री भी हुआ है, but it's been so many days that he is keeping me blocked. Is it really because कि वो मेरे looks को पसंद नहीं किए? As we spoke after a very long time and I was just being my natural self, or he is not serious for me? To talk to him, I had to beg him. It's the bare minimum. The way he acts immaturely. पहले भी उन्होंने मुझे ghost किया था, but this time I really gave him a chance as there was change in him. But this sudden behavior just after video call was shocking to me. The more days are passing by, more मुझे मन नहीं हो रही है to connect back. Yes, it's hurting me, but the way he treated me this time, just थोड़ा call and message करने पर is very sad. प्लीज़ गाइड हिम. तो अब आपने नो कॉन्टैक्ट में रहना है. बट इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है. सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो क्लिक की है वो ये कि आपको उन्होंने क्यों रिजेक्टेड फील करवाया कि आपकी लुक्स अच्छी नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है. इट्स नेवर अबाउट योर लुक्स, योर वेल्थ, कितना पैसा है आपके पास, आप कितने हसीन हैं. इन चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर कोई इंसान ट्रूली आप में इंटरेस्टेड है तो उसमें आपके पैसे का और आपके चेहरे का कोई कमाल नहीं होता है फ्रेंड्स. इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड.
मैंने इस पर कई दफ़ा आपको मिसाल दी है कि ऐसा अक्सर देखा गया है, खूबसूरत अमीर लोगों को छोड़कर लोग अजीब अजीब लोगों के पीछे जाते हैं, जिनको हम आई एम सो सॉरी अजीब नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली उनका भी क्रिएटर वही है जो हमारा क्रिएटर है। बट द थिंग इज़ कि वो लोग सेल्फ लव करते हैं, उनका एक एटीट्यूड होता है कि लोग उनके पीछे जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका बिहेवियर कैसा है किसी इंसान के साथ। आप अगर क्लिंगी हो जाते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है अगर आपका, तो लोग आपसे तंग आ जाते हैं, आपसे भागते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है, बट देखिए कि इसमें वो आपको ब्रेड क्रम्ब भी कर रहे थे कि ताकि आप उनके पीछे लगे रहें, आप उनको चेज़ करें, उनको मे बी वैलिडेशन भी आपसे चाहिए थी। इसमें मुझे ये भी नज़र आ रहा है सिचुएशन में, फिर उनका आपको ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना। इससे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत कंफ्यूज्ड थे। इससे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था और फिर वो आपको एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिले। अनफॉर्चुनेटली इन साइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है और यहाँ पर शादीशुदा लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं और वो सिर्फ यहाँ पर फ्लर्ट और गुड टाइम के लिए आए हुए हैं। बहुत कम लोग इन साइट्स पर शादी के लिए आए हुए हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से आपने यूज़ करना होता है। आप अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग एक वॉल लगाकर भी इन साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सारा आपकी बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ पर मोस्टली लोग इस तरह से करने भी आए हुए हैं और उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो नज़र आ रहा है कि उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पे बात बन जाती है तो ठीक है, अगर किसी और के साथ बन जाती है तो इनको छोड़ देंगे, अगर वहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर वैलिडेशन लेने के लिए आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग थे एक वक्त में, इसलिए उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और इस तरह के बिहेवियर में मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है, अपने क्लाइंट्स को देखा है, मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने मुझे भी एज एन ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था और वो 2-3 और लोगों को भी देख रहे थे और मुझे समझ नहीं आता था कि ये किस किस्म का बिहेवियर है कि एक दिन वो शावर कर रहे हैं मुझे अपनी अटेंशन से और इतने अच्छे हैं मेरे साथ और अगले दिन ऐसे है कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तो लेटर ऑन फिर मुझे पता चला कि वो और लोगों में भी इंटरेस्टेड थे, कुछ चीज़ें चल रही थी। तो ऐसा और भी बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है। इस तरह से लोग आपको ब्रेड क्रम्ब करते हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगी में स्टे करें, वो आपका एडवांटेज लें, आपको एज एन ऑप्शन रखें। अब इस सिचुएशन में कोई भी इंसान जब आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहा हो तो आप कभी लेस के लिए सेटल ना हो। जब वो आपको अचानक से मैसेज करें आप जवाब मत दें, अगर आप ट्रूली किसी की इंटेंशन अपने लिए देखना चाहते हैं अपने एक्सेस की। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं आप उनको जवाब मत दें। इसका मतलब होता है उनको वैलिडेशन देना। अगर उन्हें ट्रूली आपसे मोहब्बत है, ट्रूली वो आपके साथ चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं, तो वो एक मैसेज करके खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो फाइट करेंगे आपके लिए। वो बार बार आपको मैसेज करेंगे कि आई रियली नीड टू टॉक, मुझे वर्क करना है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पर, मुझे नहीं तुम्हारे बिना रहना है, आई एम सीरियस दिस टाइम, कुछ भी इस तरह की बात वो करेंगे आपसे। बट उनके ब्रेड क्रम्स का जवाब अगर आप देंगे तो फिर आपके साथ यही सिचुएशन होगी, आपको वो मैनिपुलेट करेंगे, आप ड्रेन हो जाएंगे। वो कभी आपको ब्लॉक करेंगे, कभी अनब्लॉक, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब एक्सेस को मत दिया करें। फिर वो इसी तरह आपको एक्सप्लॉयट करते चले जाते हैं किसी एक बात के पीछे, शादी के पीछे, कमिटमेंट के पीछे एक्सप्लॉयट करते रहते हैं आपको। सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बेयर मिनिमम पर कभी सेटल मत हों फ्रेंड्स। चाहे आप मेल देख रहे हैं, चाहे आप फीमेल देख रहे हैं, अपनी वर्थ को समझें और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। आप वर्ड्स को समझ जाते हैं बट आपके एक्शंस में वो चीज़ें नज़र नहीं आती, फिर वहाँ पर काम ख़राब हो जाता है। इतना लंबा नो कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आपके एक्सेस रीच आउट करते हैं आप फ़ौरन बिछ जाते हैं या उनको रिप्लाई कर देते हैं फजूल मैसेजेस का, हे हाउ आर यू के टेक्स्ट का आप रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा आइंदा। और जब तक कि वो कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ मीनिंगफुल नहीं बोलते उनको जवाब मत दीजिएगा। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।